So, are you able to see my screen? Yes, sir. Yes. Yes, Good sir. one. So now I Yes, sir. want you people to have here another session of our prepositions. Thank you so much for this one. Now we're going to see our further sessions of prepositions. And before we have finished with our in, at, on, to, under, beneath, over, above. No, not over, above, but opposite, beside, next to, under, beneath, underneath. Right? We have finished all these topics. Do you have any questions regarding them? No, sir. If you want to ask any questions regarding this, so you may ask me. No, sir. And I think I haven't seen to yet, as I was with my manager. So I think Jay has sent me a video. Am I right, Jay? Yes, sir. You have shared a video with me, right? Yes, sir. Good. I will have a look at the weekends and we'll be giving you the feedback around it about it. Okay, sir. Now, yesterday we have finished with our 109. Please keep on. And every day I want you people to at least record your voice and just have a look after your speaking. Okay. And if you have any questions over there, then you may ask me anytime. But please don't skip the practices. And if you're going to practice, skip the practice at home, then may God help your English. So I want you people to practice again and again, again and again. So it will help you a lot to make your English more amazing. Now we are going to go ahead and we are going to see today another topic. Yesterday we have finished with under, behind, opposite, and the other prepositions also. Unit number 109. Now today we are going to have a very important topic. That's what unit number 110. Here we are going to have some of the tough, I can say, some of the tough prepositions. Why I'm just saying tough prepositions? Because these are the prepositions that people are usually using in their English, but they are facing a little bit problem with them. So without any sort of hesitation and any doubts, we are going to go ahead and we're going to have here some of the prepositions which are going to help you a lot to make your sentences more amazing. And if you have any questions, you can ask me thoroughly. All right, let's go for the next one. Now we're going to go ahead and we're going to have here some of the good preposition. For example, to and from. सबसे easy है to and from. हम लोग को बचपन से मालूम है, am I right? बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं टू कहाँ यूज करते हैं, फ्रॉम कहाँ यूज करते हैं. टू मतलब यानी को, फ्रॉम मतलब से. पता है ना ये वाला तो चीज. Yes, sir. Yes, sir. गरीब Yes, लोग sir. हाँ या ना तो बोलो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yeah. So since our childhood we have been seeing that when to use to and when to use from. Okay. So to and from हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं. वो चीज को आज हम लोग वापस से एक बार रिपीट करेंगे. Then we are going to go ahead. बट इसके आगे जो आने वाले प्रीपोजिशन है थोड़े से टफ हैं. इसके लिए थोड़ा सा चने बिने साइड में रखो और यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को perfectly. And if you have any questions, you can ask me. So we are going to have here several of the prepositions today, and I want you to finish this topic today itself only. Don't waste the time much more with this. So to, for example, Jen is going to France. अब आप लोगों को बिल्कुल इजी पता है ये कि आप लोगों को टू लगाना कहाँ लगाना है भाई. टू For places. करेक्ट, फॉर प्लेसेस. सो जेन इज गोइंग टू फ्रांस. सो टू लगाया मैंने फ्रांस के लिए. फ्रांस क्या है भाई? प्लेस है. इट्स अ प्लेस. यस एंड नो. सो जेन इज गोइंग टू फ्रांस. फ्रांस को जा रही है वो. जेन इज गोइंग टू फ्रांस. सो टू मतलब व्हेन यू आर डायरेक्टिंग अ प्लेस एट द टाइम यू आर गोइंग टू यूज दैट टू. नेक्स्ट वन, वी वॉक फ्रॉम द होटल टू द स्टेशन. अब देखो यहाँ पर उसने बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया है. टू मतलब यानी कोई जगह को, मतलब आप लोग वहां पर है नहीं. फ्रॉम मतलब जगह से. when you are departing the place at the time you are going to use there from, and when you are arriving at such place you are going to use there to. जब आप कोई चीज पे पहुंचने वाले, कोई जगह पर पहुंचने वाले, वहां पे आप लोग क्या यूज करेंगे? टू. और जब कोई आप लोग जगह को छोड़ने वाले हो तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्रॉम. सो वी वॉक फ्रॉम द होटल टू द स्टेशन. होटल से स्टेशन की तरफ. तो स्टेशन को, होटल से स्टेशन को हम लोग चलकर गए. नेक्स्ट, a lot of English words come from Latin. A lot of English words come from Latin. So from and to. I want you people to make sentences with from and to. For example, every day I come from the class to my house. I come from my class to my house. I will go to Mumbai tomorrow. Can you please give me some sentences? I will go to job tomorrow. I will go to the job. I will go to work tomorrow. I will go to the workplace tomorrow. Yes. I came from the college. I came from the college. I will go to the hospital next year. Correct. I will go to the hospital. I am going to college. करेक्ट. टू. मेक सेंटेंस विद टू एंड फ्रॉम. दोनों के साथ में बनाओ सेंटेंसेस. इजी पड़ेगा. टू एंड फ्रॉम.
Yes. To and from. I will go to college from classes. I will go to college from class. I will go to I'm going from to Mumbai to. Yes. I will go I'm from going Mumbai to to one from Pune. साथ में 4 लोग बोल रहे हैं. सिंगल सिंगल बोलो प्लीज. He came to India from Dubai. करेक्ट. He came to India from Dubai. किसी ने शायद पीछे स्पीकर चालू करके रखा है. स्पीकर बंद करो. हेडफोन्स लगाओ. या फिर किसी ने डबल कनेक्शन में ज्वाइन कर रखा है. स्पीकर. अरे भाई किसी ने स्पीकर ऑन करके रखा है क्या आप लोगों में से? आवाज डबल एको हो रही है वहां पर. बंद हो जय या गया. फिर रजा, दोनों में से किसी एक ने किया है. चलो नेक्स्ट. फ्रॉम. I'll go from Mumbai to Pune. I'll go from Mumbai to Pune. Raza, sentence. I'm going to home from the medical school. Correct. Raza. Sir, are you listening to me? Yes, आपने कुछ पीछे बैकग्राउंड में कुछ चालू करके रखा है क्या? स्पीकर वगैरह? नहीं सर, मेरा थोड़ा डिवाइस का प्रॉब्लम चल रहा है सर. My dear, please change it because एक वॉइस एको हो रहा है, उसकी वजह से डबल आवाज आ रही है. आई थिंक Okay. सर क्या? माइक प्रॉब्लम है थोड़ा सा. तो हेडफोन्स चेंज कर दो फिर. हेडफोन नहीं है सर, इसके लिए तो निकाल के फेंक दिया हेडफोन. हाँ, फोन का इसके माइक लिए- यूज करो, उसके इसके लिए लिए प्रॉब्लम वो है. फोन का स्पीकर बज रहा है, वही तो बोल रहा हूँ मैं. किसी ने स्पीकर ऑन करके रखा है, फोन के स्पीकर की वजह से हो रहा है. ओके, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट सेंटेंसेस. We visit to museum from college. Correct. We will go to the museum from the college. Next. We will Many of the go people. for a picnic from the college. Correct. We'll go for a picnic from the college. I've got many rewards from this college. The envelope is from Viom Labs. How I much will is the come distance from from the my station to the home? How much is the distance between home and the station? Yes, mister? I got my master's degree today from the college. Correct. I've passed my master's from Pune University. From. I didn't go from airport to my home. Correct. I didn't go home from the airport. I get so many gifts from my friend. Correct. I got so many gifts from my friends. My mother goes Will- to the market from the bus stop. Correct. From the bus stop. I will come from my friend's home to my home. Correct. I'm cycling from my home to station. Correct. I'm cycling from I'm my going to home to the restaurant. station. I'm going for a restaurant from my friend's home. Correct. Yes. I'm going to class from Kodwa to camp. Correct. I'm going for class from Konwa to camp. Next. From and to. Yes. I am basically from Kolhapur. Correct. I come from Kolhapur. I'm basically from Kolhapur. Anyone else with to and from? बहुत easy है. Next. Now अभी यहाँ पे थोड़ा different, थोड़ा difficult है. ध्यान दीजिएगा please. So to मतलब यानी को and from मतलब यानी से. ये हमारा हो चुका है, right? Next one, now I'm going towards the next one. That's what? Into. एक होता है in मतलब यानी अंदर, and into and out of. Now what do you mean by into? Into. When something is suddenly going inside, Good one. like we are jump in swimming pool, or that time we can use into. Okay. और कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे into? Into का मतलब क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है into?
Yes, Asma. Into or in. The difference between in or into. Muskan, the difference between in and into. Mr. Mustaqim, the difference between in and into. Going out from one door and go another door. सर इन मतलब कि कोई चीज में जाना, बट इनटू मतलब कि कोई भी चीज में मूविंग मूव करने के लिए, मूव होते हुए जाते हैं अंदर, तो उसके लिए यूज होता है इनको. Excellent. Very good. Correct. बिल्कुल सही. Now please pay attention. इनका मतलब होता है कोई चीज ऑलरेडी अंदर रहना. ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, याद आ रहा है? इन लंदन, आई लिव इन पुणे, मैं पुणे में रहता हूँ, तो पुणे में ऑलरेडी हूँ मैं. Yes or no? So Yes, when sir. something is Yes, sir. already inside, we are going to use their in. For example, I have a lot of data in my laptop. मेरे लैपटॉप में है. Getting it? Right now I'm in my flat. मैं मेरे फ्लैट में हूँ. In the flat. My phone is in my pocket. मेरा फोन मेरे पॉकेट में है. Already है वो अंदर. So what's the difference between into and in? We are using into for the entrance. For the entrance. हम लोग into यूज करते हैं entrance के लिए, दाखिले के लिए, admission के लिए. जब कोई चीज के अंदर हम लोग एंटर हो रहे हैं, वहां पे हम लोग यूज करेंगे into. फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सर दीजिए तो प्लीज. मैंने भी यही तो कहा था कि सडनली हम जब स्विमिंग पूल में जा रहे हैं दैट जय, टाइम. तो मेरे प्यारे जय, मैंने बोला ना बिल्कुल सही है, मैंने कहा मना किया था. पर आपका जो डेफिनेशन था ना मेरे प्यारे ओके जय, सर. आपने बिल्कुल सही कहा और मैंने ये भी बोला कि सर जय ने बिल्कुल सही कहा है. मैंने बोला बिल्कुल सही, पर मैंने नेक्स्ट डेफिनेशन क्यों सर मांगा था? क्योंकि वॉइस सर ऐसा कट चाहिए है मुझे इससे ताकि. बोलिएगा. अच्छा अच्छा, नहीं मैंने सही बोला, मैंने गलत नहीं बोला आपको, बिल्कुल सही कहा आपने. सॉरी सर, रिकॉर्डिंग्स में सॉरी. है. अरे नो सॉरी यार, रिलैक्स. सो मैं कुछ बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अब आपको एक डेफिनेशन ऐसा चाहिए था जो कि स्टूडेंट्स लोग को भी समझ में आना चाहिए एकदम क्विकली, डायरेक्ट लोकली स्टूडेंट्स लोग को समझ में आना चाहिए ना. फॉर एग्जांपल, कोई चीज के अंदर, अब जैसे कि ये फ्लैट है, ध्यान दीजिए. हाँ, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है. अभी फ्लैट के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम इन द फ्लैट. ध्यान दीजिए सभी लोग, आई एम इन द फ्लैट. मैं ऑलरेडी फ्लैट में हूँ, बराबर. एंड तुम्हारी चौथी भाभी फ्लैट के अंदर आ रही है, आ रही है, अभी वो अंदर आ रही है. शी इज मूविंग इनसाइड, वो अंदर आ रही है. तो मैं क्या बोलूंगा उसके लिए? शी इज कमिंग इन टू द फ्लैट. शी इज कमिंग इन टू द रूम. शी इज कमिंग इन टू द रूम. दोनों में थोड़ा फर्क है. आई एम इन द रूम, मैं ऑलरेडी रूम के अंदर हूं. आई एम इन द रूम एंड शी इज कमिंग इन टू द रूम. समझा? समझा? Yes, sir. So Yes. for the entrance we are going to use their into. जब हम लोग एंट्रेंस मतलब यानी दाखला करेंगे कोई चीज के अंदर, जब हम लोग घुसेंगे तो वहां पे घुसने के लिए, वहां पे एंटर होने के लिए हम लोग इनटू यूज करेंगे. समझा? अभी सिंपल. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऑफिस है. शी इज इन द ऑफिस, वो ऑलरेडी ऑफिस में है. शी इज इन द ऑफिस, आई एम गोइंग इनटू द ऑफिस. मतलब यहाँ पे एक्शन क्या है? वहां पे एक्शन आएगी, मूविंग एक्शन आएगी, तब हम लोग यूज करेंगे इनटू. सो शी इज इन द ऑफिस ऑलरेडी एंड शी इज गोइंग इनटू द ऑफिस. एक्शन क्या है वहां पर? Going. करेक्ट, गोइंग का एक्शन है, मतलब वो अंदर जा रही है. सो शी इज गोइंग इनटू द ऑफिस. समझा? समझा? Yes. सिंपल सी चीज है. फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला आप लोगों को? माई फोन इज इन माई पॉकेट. ऑलरेडी मेरा फोन पॉकेट में है. एंड आई एम कीपिंग the AirPods into the pocket. My phone is already in the pocket and I'm keeping my AirPods into the pocket. यहाँ पे into क्यों लगाया? क्योंकि वहां पे एक एंट्री का एक एक्शन हो रही है. क्या है वो? I'm keeping my AirPods into the pocket. तो मैं keeping वाला जो एक्शन है वो क्या है? एक्शन है, और उसके लिए क्या लगाऊंगा मैं? into. समझा आप लोगों को? Two. समझा? समझा क्या? Yes. अब ध्यान दीजिए, Yes, अब ध्यान दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे Yes, कि sir. ये एक ये है, क्या है? लेक है, लेक. ओके, झील है, झील, लेक है. वो जो लेक है उसके अंदर मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, देर आर मेनी फिश इन द लेक. देर आर मेनी फिश इन द लेक. के अंदर बहुत सारी फिश है.
Okay, there are many fish in the lake and we jumped into the water. और ये जो पानी है इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया? There are many fish in the water. लेक के अंदर पानी है ना, वो पानी के अंदर ऑलरेडी मैंने क्या बोला? There are many fish in the water. In the water मतलब नहीं, पानी में ऑलरेडी फिश है, ऑलरेडी पानी में है. और मैं क्या बोल रहा हूँ अब? We jumped into the water. Into क्यों लगाया? क्योंकि वहां पे एक एक्शन है. क्या हो रही है एक्शन? jumping. करेक्ट, जंपिंग की. समझा? तो जब कभी हम लोग कोई एक्शन के बारे में बोलेंगे तो हम लोग यूज करेंगे इनटू. इनटू मतलब नहीं, कोई इंसान अंदर आ रहा है तो इसके लिए लगेगा इनटू. समझ में आ रहा है? समझा? फॉर एग्जाम्पल, Yes. अब Yes, जैसे sir. कि एटीएम मशीन है. एक और लास्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर. अब एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन है तो उसके अंदर कैश ऑलरेडी है, तो मैं क्या बोलूंगा? उसके अंदर कैश है ऑलरेडी, मैं क्या बोलूंगा? In the machine. The In the cash is in the machine. करेक्ट, द कैश इज The इन द cash मशीन. ऑलरेडी मशीन में कैश है. अब मुझे बोलना है उसके अंदर कार्ड लगाओ, तो मैं क्या बोलूंगा? प्लीज इंसर्ट कार्ड into the Into the ATM machine. into क्यों ATM भाई? machine. इनटू क्यों? Card. इनटू क्यों? क्योंकि वहां पर एक एक्शन है, क्योंकि अभी आप लोग कार्ड को लगाने वाले हैं, वो कार्ड उसके अंदर डालने वाले, तो जो डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो इंसर्ट वाली जो एक्शन है उसके लिए क्या लगाऊंगा मैं? Into. समझा? समझा? Yes, sir. वेरी सिंपल. थोड़ा सा क्रिटिकल था इसलिए मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दिए आप लोगों को. नाउ वी जंप्ड इनटू द वाटर. हम लोग जंप किया इनटू द वाटर, पानी के अंदर. अ मैन केम आउट ऑफ द हाउस. घर से बाहर आया वो. अ मैन केम आउट ऑफ द हाउस एंड गॉट इनटू द कार. और जो उसकी कार खड़ी थी उसके अंदर क्या किया उसने? गॉट इनटू द कार मतलब कार में घुस गया. सो जो घुसा कार में, जो एंट्री किया उसने, सो गॉट इनटू द कार, जो एंट्री करने के वहां पर बोला गया है गॉट इनटू द कार. समझा वहां पर? Yes. सो रूम से बाहर आया, घर से बाहर आया और डायरेक्ट कार में घुस गया. सो बाहर आना, कार में जाना, ये दोनों क्या एक्शन है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? आउट ऑफ एंड इनटू. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? No. नेक्स्ट, व्हाई आर यू लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. विंडो के बाहर आप क्यों देख रहे हैं? व्हाई आर यू लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. आउट ऑफ बहुत इजी है. आउट ऑफ मतलब ही नहीं बाहर, एंड इनटू मतलब ही नहीं अंदर जाना. आई टुक द ओल्ड बैटरीज आउट ऑफ द रेडियो. I took the old batteries out of the radio. Can you please give me some sentences with into and out of? Into and out of. I am I'm going out into of the bed. ground. I'm going into the ground. मतलब यानी ग्राउंड के अंदर जा रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ और अंदर जा रहा हूँ. Next, I am out of state. I'm out of state. मैं स्टेट के बाहर हूँ. Next, He is coming into the I'm out college. of the town. he's coming into the college. I'm out of the town. Next, into out of. Sentence ना बनाने वाला महा donkey. Train is going into the tunnel. Correct. The train is going into the tunnel. Tunnel के अंदर जा रही है ट्रेन. Good one. जाने की एक्शन होगी तो ही यूज होगा into out of. चलो, जाने आने की. चलो, make sentences. The water I'm into going the traffic. into mouth. The water is flowing into the. Mouth. Okay. Next, We are going into a shop. we are going into. A shop. We are going into a shop. Next, The paper is I'm going putting into my the books printer. into the bag. correct. The car is going into the parking area. Correct. ध्यान दीजिए प्लीज. अभी ये मेरा सैचल है, राइट? ये जो मेरा सैचल है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए. आप लोगों को दिख रहा हूँ ना मैं? Yes. नाउ दिस इज माय सैचल. ये मेरा सैचल है, करेक्ट? अभी सैचल के अंदर ऑलरेडी एक बुक है मेरे पास में, तो मैं क्या बोलूंगा? द बुक इज इन द सैचल. In the set. द बुक इज इन द सैचल. सैचल में ऑलरेडी है वो, सो द बुक इज इन द सैचल. देखो, द बुक इज इन द सैचल, करेक्ट? अब मैं बोल रहा हूं आई एम कीपिंग द स्पीकर. क्या ये? Into the satchel. Into a set. Into the set. आई एम कीपिंग द स्पीकर इनटू द सैचल. तो ये जो एंटर हो रहा है देखो इसके अंदर, वो एंट्री के लिए मैं क्या यूज करूंगा? इनटू. समझा? समझा? Yes. सिंपल है. अब क्या बोलूंगा मैं? स्पीकर कहाँ है? In the satchel. करेक्ट. अब वो हो जाएगा इन द सैचल. समझा? समझा? Yes. गुड. चलो, क्या बात है, माशाल्लाह. आज ये वाली बैच के अंदर तो खाली जय और आसमा ही प्रेजेंट है. वेरी नाइस.
क्या करो यार, मेरे को इंग्लिश नहीं आ रहा है यार, कब भर भर नहीं आ रही मेरे घर में, आएगी भी नहीं। क्यों? ऐसे एड़े चले करेंगे, एब्सेंट रहेंगे तो कैसे आएगी भरभराट। चलो नेक्स्ट वन प्लीज, इनटू आउट ऑफ। जल्दी जल्दी सेंटेंस बनाना, जल्दी जल्दी फटाफट। इनटू आउट ऑफ, That time my sister is out of the house. करेक्ट। नेक्स्ट, He is going into the bed. नेक्स्ट, I'm going He out of threw the India. letter in the नेक्स्ट, he Jay. threw the letter into the letter box. करेक्ट। He threw the letter into the letter box. Next, My father is entering into the hospital. correct. Next, into out of, She is into the cafe. very good. My Miss father is Asma, out have you of got the any other country. call? Miss Asma, have you got any other call? Yes, sir. But they don't call me again. So they have called you only once, right? Yes, sir. Can you In please come on the camera? evening. Can you please come on the camera? Yes, sir. Yeah. So when did they call you? In the afternoon at 12 o'clock. Okay. And what did you tell them? I telling them कि I'm in at the train. I will call you after few minutes. Okay. Then Then I will call her at the evening. you called But her in the she- evening. Yes, sir. But she said I'm busy in other works. I will call you later. Okay. 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 No problem. And now remember, do not lie even a single point. Whatever the truth is there, speak up there. Okay. Yes, sir. Yes. You tell her each and everything. Okay. Yes. And if she's going to ask you anything, then just tell her that you're working on Snowflake and Mendix right now, especially on Mendix. Okay. Mendix is a Yes. really very great platform. बहुत Okay, जबरदस्त sir. चीज है Mendix. Snowflake नल्ला है, but Mendix is the great platform. Just tell her that you're studying Mendix right now. You don't know Okay. anything about Mendix, but you are studying Mendix, but you already know Python, Java, and all. Okay. Okay. So whatever the truth is there, speak up there. Good. Okay. हो जाएगा इंशाल्लाह. Okay. Thank you. एंड सी वन मोर थिंग, उन लोग बोले ना अगर कुछ अगर सैलरी के बारे में, तो वो लोग खुद ही बोलेंगे, उन लोग को बोलने का कि सैलरी जो है आपके प्रॉक्सी के हिसाब से जो भी कुछ भी रहेगा, ज़्यादा उन लोग के सामने ऐसे बिचने का नहीं, जैसे अपने को बहुत ज़्यादा गरज है. ठीक है, Thank you. हाँ देंगे वो लोग अच्छा करके. चलो नेक्स्ट, इनटू आउट ऑफ. Sir, if she asks about salary, then what can I say to her? पार्डन? If If she she asks me about salary, how much you want, then what I say to her? no, see, you don't need to enclose anything. You are just going to tell her according to the proxy of the company, I'll be agree with it and will be negotiable. Just say this sentence, according to the proxy of the company, it will be negotiable. So वो आपको सामने से क्या ऑफर देती है, उसको बोलने का थोड़ा सा और बढ़ा के उसके ऊपर कुछ हो सकता है क्या, ऐसा बोलने का. Okay. अगर आपने कभी बोला कि मुझे 10,000 चाहिए और सामने वाले बोलने वाले थे 15,000, तो आपका मसला हो जाएगा. आप समझेंगे मेरी बात. So just tell them that according to the proxy of the company, I'll be ready with it and quite be negotiable. ऊपर नीचे कर सकते हैं अपन, ऐसा बोलने का उनको. And see what she offers you, then have their negotiation with her. Okay? Okay, sir. Good. Go on. Make sentences, please, all of you. Into out I of. was sliding into depression. Next. Correct. I am jump into the river. Good. Next. Into out of. It is coming out of the pool. Good. Next. Into out of. I'm going out of Pune I'm for some going out days. of town. Correct. Out of the town. Yes. The train is I'm entering into transferring my Pune. data into the laptop. Correct. I'm transferring the data into the laptop. Yes. Into out of. I'm going out of. I'm going out of my mind. Yes. Yes. Into out of. Anyone else with into or out of? Now today you people are The being so question is silent. out of The question is out The of question is syllabus. syllabus. Okay. The question was from out of syllabus. Yes. Anyone else? He will come into stadium. He will come into the stadium. She's working out of her hometown. Correct. I The have so players. many images into my mobile. Correct. Yes. Anyone else with into out You of?
you are going to out of state, mandatory for COVID vaccinated certificate. Correct. If you're going out of the state, then vaccinated is certificate is mandatory. Next. Anyone else with into out of? He's playing out of the ground. Correct. Okay, next one is what? On and off. Next one जो है हमारा वो है on and off. Have a look here. Please pay attention. On and off. अब on और off ये बंद और चालू वाला on off नहीं है. बंद चालू वाला on off नहीं है. यहाँ पर जो on और off का मतलब है वो थोड़ा सा अलग है. If you see there, on मतलब है नहीं कोई चीज को हम लोग ऊपर रखते हैं उसको हम लोग बोलेंगे on. और off मतलब है नहीं निकाल देना. कोई चीज को रखने के लिए बोलेंगे हम लोग on. और off मतलब है नहीं ये यहाँ पर है निकाल देना, हटा देना, बंद करना, छोड़ देना. If you see there, this on and off doesn't mean that turn on and turn off. यहाँ पर on off का मतलब ये नहीं है कि उसको चालू करो और बंद करो. यहाँ पर on off का मतलब है रखो और हटा दो. So on मतलब है नहीं कोई चीज को रखना, कोई चीज को ऊपर करना, और off मतलब है नहीं हटा देना, छोड़ देना. For example, आप लोगों ने सुना रहेगा the plane will take off. The plane will take off in some time. So plane take off का मतलब क्या होता है? Plane क्या करता है? Ground छोड़ देता है. Yes or no? Yes, sir. Plane Yes. क्या करता है? Yes, Ground sir. को छोड़ देता है, इसके लिए उसको बोलते हैं take off. Off मतलब ही नहीं वो ground को छोड़ देता है, वो हट जाता है ground से. तो उसको बोलते हैं the plane has taken off. Plane ने जगह छोड़ दी है. The plane has taken off the land. So take off मतलब ही नहीं ground छोड़ देना. And take on मतलब ही नहीं ground को पकड़ना, रखना. वहां पर मतलब ऐसा आएगा. तो ऑन ऑफ मतलब चालू बंद नहीं है, उसका मतलब क्या है? रखना और हटाना. ओके, दोनों का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा प्लीज. नाउ डोंट पुट योर फीट ऑन द टेबल. डोंट पुट योर फीट ऑन द टेबल. सो पुट ऑन द फीट का मतलब होता है मत रखिए. अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मराठी में बोलते हैं, मराठी में हम लोग एक चीज बोलते हैं कपड़े पहनने के लिए, क्या बोलेंगे? अब जैसे हम लोग बोलेंगे टी शर्ट, जैकेट, हम लोग क्या बोलेंगे? Where? जैकेट घाल. मराठी में क्या बोलेंगे? घाल. तो उसको जैकेट जो घाल. घाल मतलब ये नहीं क्या होता है, डाल होना है होता है, मतलब इसको पहनो होता है वहां पर बोलने का मतलब. तो हम लोग इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं प्लीज पुट ऑन योर जैकेट. पुट ऑन मतलब ये नहीं पहनो. वहां पर पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, मतलब ये नहीं डालना, पहनना, रखना. तो वहां पे ऑन का मतलब होता है पहनना, रखना, डालना. एंड ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? निकालना, छोड़ना. सो द प्लेन विल टेक ऑफ. प्लेन टेक ऑफ क्या मतलब उसने ग्राउंड को छोड़ दिया. दैट्स व्हाट द प्लेन हैज टेकन ऑफ द ग्राउंड. तो ग्राउंड को छोड़ दिया प्लेन ने, इसलिए उसको बोलेंगे टेक ऑफ. सेकंड थिंग इज व्हाट? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी को बोला प्लीज टेक ऑफ योर जैकेट, मतलब यानी जैकेट आपका निकालो. सो टेक ऑफ, ऑफ मतलब यानी हटा देना, वहां से निकाल देना, छोड़ देना. सो प्लीज टेक ऑफ योर जैकेट, टेक ऑफ द ग्राउंड. समझ में आ रहा है? तो वहां पे ऑन और ऑफ का मतलब Yes. क्या होता है? लगाना और हटाना. ऑन मतलब लगाना, रखना, चिपकाना भी बोल सकते हैं हम लोग. और ऑफ का मतलब होता है हटाना, छोड़ देना. सो डोंट पुट योर फीट ऑन द टेबल. डोंट पुट योर फीट ऑन द टेबल. टेबल पर मत रखो. नेक्स्ट, प्लीज टेक ऑफ योर फीट ऑफ द टेबल. ऑफ द टेबल मतलब इन्हें टेबल से हटा दो. प्लीज टेक ऑफ योर फीट ऑफ द टेबल. प्लीज टेक योर फीट ऑफ द टेबल मतलब इन्हें टेबल से हटा दो. नेक्स्ट, I'm going to hang some pictures on the wall. ये नॉर्मल वाला है. I'm going to hang some pictures on the wall मतलब इन्हें लगाने वाला हूँ. मैंने अभी बोला ना, लगाना, रखना, उसको हम लोग बोलेंगे on. So मैं कोई चीज, कोई पिक्चर्स वॉल पे लगाने वाला हूँ. I'm going to put on the pictures on the wall. ऐसे ही बोल सकते हैं. I'm going to hang on the pictures on the wall. So I'm going to hang on the pictures on the wall. I'm going to put on the pictures on the wall. Next one, be careful. Don't fall off your bicycle. बाइसिकल से गिर मत जाना. बी केयरफुल, डोंट फॉल ऑफ योर बाइसिकल. डोंट फॉल ऑफ योर बाइक, डोंट फॉल ऑफ योर बाइसिकल मतलब बाइक से गिरना, बाइक से हटना. डोंट फॉल ऑफ. नेक्स्ट, वी गॉट ऑन द बस इन प्रिंस स्ट्रीट. वी गॉट ऑन द बस इन प्रिंस स्ट्रीट. इफ यू सी देयर, वी गॉट ऑन मतलब इन्हें चढ़ना. तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है, ऑन का मतलब चढ़ना होता है, ऑफ का मतलब होता है उतरना. सिंपल मीनिंग है चढ़ना और उतरना. ओके. सेकेंड थिंग, अब जैसे कि हम लोग को बोलना है फॉर एग्जाम्पल कार से बाहर निकलो, तो हम लोग क्या बोलेंगे वहां पे? प्लीज Take off from car. नो, टेक ऑफ नहीं आएगा वहां पर. क्या आएगा? गेट ऑफ द कार. प्लीज गेट ऑफ द कार. प्लीज गेट ऑफ द कार. कार से बाहर निकलो. आप लोगों ने सुना रहेगा गेट ऑफ.
हम लोग बोलते हैं ना गेट लॉस्ट, उसकी जगह पे गेट ऑफ भी बोल सकते हैं, मतलब यानी जाना, वहां से हट जाना। सो प्लीज गेट ऑफ द कार, कार से बाहर निकलो। और अगर अपने को बोलना है बस में चढ़ो तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लीज गेट ऑन द बस, बस में चढ़ो। तो चढ़ने के लिए वहां पे यूज होगा ऑन, गेट ऑन द बस, गेट ऑफ द बस मतलब यानी उतरो। सो चढ़ना और उतरने के लिए वहां पे ऑन और ऑफ लग रहा है, बहुत कम यूज होता है बट आप लोग को सिर्फ पता होना चाहिए। कैन यू प्लीज गिव मी गुड सेंटेंसेस विद दिस? He is sitting on the chair. ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। नेक्स्ट, Aircraft on the ground. ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट, Move on from my eye. करेक्ट, मूव ऑन। नेक्स्ट, Please take out your finger from your mouth. करेक्ट, प्लीज टेक ऑफ द फिंगर फ्रॉम योर माउथ, करेक्ट, फिंगर निकालो माउथ में से, टेक ऑफ द फिंगर। नेक्स्ट, Kids are playing on the terrace. ऑन द टेरेस। नेक्स्ट, We are Take off. playing on the ground. करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल अपने को अगर हिंदी में बोल, जैसे हम लोग बोलते चलो मैं आता, चलो मैं निकलता, चलो मैं आता, चलो मैं निकलता, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? I'll- क्या Sorry. बोलेंगे उसको? चलो मैं Sorry? आता, चलो मैं निकलता, हम लोग Push off. इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? पुश ऑफ। ओके, आई पुश ऑफ, चलो मैं निकलता हूँ। तो निकलता हूँ मतलब ओके, आई पुश ऑफ। ओके, लेट मी पुश ऑफ, चलो मुझे निकलने दो अभी, चलो निकलता हूँ मैं। तो निकलने को क्या बोलेंगे? पुश ऑफ। पुश ऑफ मतलब ही नहीं निकलता हूँ मैं, आता हूँ मैं। ओके, आई पुश ऑफ बोल सकते हैं ऐसा। ऑफ मतलब ही नहीं कोई जगह को छोड़ देना, और ऑन मतलब ही नहीं कोई जगह के ऊपर सवार होना। तो यहाँ पे चढ़ना और उतरना ये होता है ऑन एंड ऑफ। गिव मी सेंटेंसेस मोर विद ऑन एंड ऑफ। फॉर I have- एग्जांपल, Please I have take to off get- this book from the table. करेक्ट, Sorry. I have to get down from the bus. करेक्ट, आई हैव टू गेट डाउन फ्रॉम द बस, और आई हैव टू गेट ऑफ द बस, बस Get से off. निकलना है, Hmm. गेट ऑफ द बस। Hmm. नेक्स्ट, Get It off is from the climb on a hill. I'm on a hill, get off Please from the put your bags on the table. put your bags on the table. Yes, get off, Mr. Mustaqim, repeat the sentence. Get off, Please take off. off. get off the, Get off the office. get off the office, office से बाहर निकलो। Okay, next, Please Put take off. off the plate on the table. दोस्त मेरे क्या बोल रहे हैं आप? Put off the table, put the plate off the table मतलब मेरी Plate, टेबल से, plate of the table. okay, Put put on the, put put on the off plates on the table. Wall. Yes, sir. Put off the frame from the wall. Correct, correct. Next, Come on, we are playing. come on, There is a plant hanging on the wall. correct, Don't keep books on table. correct. Hurry For up, example, get on the bus. करेक्ट। हम लोग को बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना दूर रहो, दूर रहो को क्या बोलेंगे? Keep off. करेक्ट, कीप ऑफ, सिंपल, कीप ऑफ। हम लोग बोलते हैं ना कीप ऑफ दैट जोन, अरे उससे दूर रहो, वो जरा थोड़ा एरिया डेंजर है, वहाँ पे मीटर वगैरह खुला है, तार वगैरह बाहर आई हुई है। सो कीप ऑफ दैट जोन, कीप ऑफ, हटे रहो मतलब ही नहीं वहां से हट जाओ, बाहर निकलो। तो वहां पे ऑफ का मतलब ही होता है कि हट, दूर रहो उससे, कीप ऑफ दैट जोन। नेक्स्ट, ऑफ। Anyone else with on and off? Don't run, you will fall off. Correct, don't run, you will fall off. नीचे गिरेंगे ऐसा हो जाएगा, don't run, you will fall off. Next, on off. For example, put on your shades, put on your glasses मतलब यानी चश्मा पहनो, put on your glasses. Put on मतलब put मतलब रखना, on मतलब यानी पहनना। तो मतलब यहाँ पे पहनने के लिए क्या बोलेंगे? Put on. Put on your jacket, put on your glasses, और glasses निकालो बोलेंगे तो take off. Take मतलब यानी निकालना, तो मतलब यानी निकाल के रखना। So take off your glasses, take off your jacket. Getting it? So take off your glasses, take off your jackets. Next one, please. Go next to the next one in that Take word. off Up the and papers on your mouth. correct. Correct. Now up and down. Up and down. Next one is what? Up and down. Now when do we use up and down? पता ही रहेगा, बहुत easy है. Yes, Up मतलब sir. ऊपर, मतलब पर ऊपर, down नीचे. नीचे. Up मतलब यानी ऊपर होता है, and down मतलब यानी नीचे होता है. सिंपल सी चीज है.
Now we walked up the hill to the house. We walked up the hill to the house. हम लोग ऊपर गए, कहाँ पर? पहाड़ी पर, हिल पर, टू द हाउस, हमारे घर पर. तो हमारा घर कहाँ था? पहाड़ पे था, पर्वती पे. तो हम लोग क्या बोलेंगे? I walked up the hill to the house. I walked up the hill to the house. Next one, be careful, don't fall down the stairs. Stairs से नीचे मत गिर जाना. Don't fall down the stairs. Stairs से नीचे मत गिरना. So down नीचे, up मतलब है नहीं ऊपर. Now another thing is there. अब एक चीज क्या होती है, मुझे कोई बताएगा what do you mean by uptown and downtown? Uptown and downtown. अप डाउन मीन्स आना जाना. अप डाउन नहीं बोला दोस्त मैंने, Town. अप टाउन बोल रहा हूँ मैं. अप टाउन, डाउन टाउन. अप टाउन एंड डाउन टाउन क्या होता है? अप टाउन क्या होता है? डाउन टाउन क्या होता है? ध्यान दीजिए प्लीज. अब जैसे कि पुणे के अंदर, पुणे में कोंडवा जो है ये अप टाउन में आएगा जनरली. गौर से पहले सुन लो एक बार. अप टाउन मतलब है नहीं कोंडवा, कोंडवा इज अप टाउन. और कैंप क्या रहेगा? Downtown. डाउन टाउन. मतलब है नहीं नीचे साइड का एरिया. और जो चीज हिल साइड पे रहेगी ना उसको अप टाउन बोलेंगे. अब कोंडवा डाउनटाउन रहेगा किसके लिए? ऊपर साइड में क्या है यहाँ पर? बापदेव तालाब घाट है वो, मस्जिद। क्या है वो? हाँ करेक्ट, वो तालाब वगैरह वो सब टोटल ऊपर साइड में जाता है वो. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कोंडवा उनके लिए क्या बन जाएगा? डाउनटाउन. और अपटाउन क्या रहेगा? वो भिवरी वगैरह जो है ना वो ऊपर साइड में एरिया पूरा, वो सब अपटाउन रहेगा. सेम केस. अब जैसे कि उर्ली कंचन है, उर्ली कंचन जो है वो थोड़ा देहात का इलाका है, गांव का इलाका है, विलेज टाइप का इलाका है, उसको हम लोग बोलेंगे अपटाउन. और स्वारगेट जो रहेगा वो क्या रहेगा? Downtown. डाउनटाउन Downtown. रहेगा. समझा? तो जय, अभी आपके एरिया में, आपके उज्जैन में ऐसा भी हो सकता है कि कोई एरिया जो रहेगा थोड़ा सा गांव टाइप का है, थोड़ा सा डेवलप नहीं है, या फिर थोड़ा सा सिटी के बाहर है, और एक होगा मेन सिटी जहाँ पे मेन मार्केट रहेगा, बराबर ना? यस सर. तो जो मेन मार्केट वाला एरिया है उसको बोलेंगे डाउनटाउन. और जो ऊपर साइड का एरिया है, ऐसा एरिया जो कि हमारा सिटी से थोड़ा हटकर है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपटाउन. करेक्ट मिस आसमा? Yes, sir. मुंबई में भी ऐसे ही होता रहेगा. तो कहीं पे एक ऐसे रहेगा जगह जहाँ पर सिटीज वगैरह मतलब नहीं, वहाँ पे शॉप्स वगैरह रहेंगी मेन. करेक्ट. कोई मार्केट रहेगा, वो रहेगा अपटाउन, सॉरी डाउनटाउन. और अपटाउन मतलब नहीं थोड़ा सा ऐसा इलाका रहेगा जो कि थोड़ा सा ऊपर साइड में, अपटाउन जिसको बोलेंगे हम लोग. ओके. Sir, we can say suburbs also, no, for the surrounding this area. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, वी कैन से. और एक और चीज है, अंडरग्राउंड को और क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड को और क्या बोलते हैं? किसको? अंडरग्राउंड. यस गाइस, अंडरग्राउंड को और क्या? अमेरिकन इंग्लिश में अंडरग्राउंड को क्या बोलेंगे? सबवे बोलते हैं उसको. सबवे. हाँ हाँ. हाँ करेक्ट, उसको सबवे भी बोलेंगे. तो मैम आप जहाँ पर बैठती हैं वो जगह को हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ सबवे, और आप उसको अंडरग्राउंड भी बोल सकते हैं. तो अंडरग्राउंड ब्रिटिश इंग्लिश हो जाएगा, और सबवे जो है ये अमेरिकन इंग्लिश हो जाएगा. और दोनों भी करेक्ट है, दोनों भी सही है, बिल्कुल सही है एकदम. अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है, कभी कभी वर्ड्स क्लैश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टैप मतलब यानी नल. टैप नल होता है ना हमारा पानी का नल. अमेरिकन लोग क्या बोलते हैं टैप को? Frozen. Faucet. फॉसेट बोलते हैं उन लोग. क्या बोलते हैं उसको? Faucet. फॉसेट बोलते हैं हम लोग. जैसे फुटबॉल को हम लोग बोलते हैं फुटबॉल ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन लोग उसको क्या बोलते हैं? Soccer. सॉकर बोलते हैं हम लोग उसको. सेम केस. अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बोलते हैं कबर्ड, कबर्ड, कबर्ड. अमेरिकन लोग क्या बोलते हैं उसको? कबर्ड को हम लोग बोलते हैं Wardrobe. कबर्ड. नहीं, वार्डरोब थोड़ा सा अलग होता है, Okay. कपड़ों का होता है वार्डरोब. तो कबर्ड को अमेरिकन लोग बोलते हैं क्लोजेट. Closet. फुटबॉल हम लोग बोलते हैं, उन लोग बोलते हैं सॉकर. हम लोग बोलते हैं टैप, हम लोग मतलब नहीं ब्रिटिश लोग. और फॉसेट बोलते हैं अमेरिकन लोग. यस सर. फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि ये लोग बोलते हैं सिंपली बैग, बैग, बैग. कौन? अमेरिकन लोग. ब्रिटिश लोग उसको बोलते हैं सैचल. कौन से वाले बैग को? अपने स्कूल का बैग होता है ना, उसको सैचल बोलते हैं हम लोग. अमेरिकन लोग सबको बैग ही बोलते हैं, सिंपल, सबको बैग, 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 सबको बैग बोलते हैं उन लोग. सेम केस. फॉर एग्जांपल अभी आप लोग जाते हैं शादी में, स्टार्टर खाते होंगे आप लोग वहाँ पर,
स्टार्टर क्या होता है? ये स्टार्टर आप लोग जो करेक्ट उसको तुम लोग बोलते हैं एपेटाइजर। तो मतलब ये नहीं क्या था, है एक ही चीज, खाली उसके लिए अलग अलग वर्ड्स दिए हम लोगों ने। गेटिंग इट? फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि ईयरफोन्स, करेक्ट, ये ब्रिटिश लोग बोलते हैं, वो ईयरफोन को ही बोलते हैं उन लोग एयर प्लग्स, अमेरिकन लोग। है सेम ही इंग्लिश बट थोड़ा सा अलग अलग उन लोग का रहेगा। सेम के साउंड के अंदर भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जांपल ऑफ्टन अमेरिकन लोग बोलते हैं और उसी को बोलते हैं ऑफन कौन? ब्रिटिश लोग। सेम केस फॉर एग्जांपल शेड्यूल ब्रिटिश लोग बोलते हैं, अमेरिकन लोग बोलते हैं उसको स्केड्यूल। फॉर एग्जांपल ओपन, ओपन 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 हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश लोग, एंड अमेरिकन पीपल दे से ओपन 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 ओपन। फॉर एग्जांपल चेयर, so if you see there chair, r is not silent in American English and British English में chair वहाँ पर r silent करके बोलते हैं हम लोग। तो थोड़ा थोड़ा सा क्या है फर्क है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, अमेरिकन लोग उसको बोलते हैं एडुकेशन, वो डी का साउंड निकालते हैं हम लोग। करेंगे सो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, हम लोग देखेंगे आगे आगे चलते हैं। सो अप एंड डाउन, कैन यू प्लीज गिव मी सम सेंटेंस विद अप एंड डाउन? अप मतलब नहीं ऊपर, डाउन मतलब नहीं नीचे, बहुत सिंपल एकदम। फॉर एग्जांपल आई गो अप द स्टेयर्स टू माय रूम, I go up the stairs to my room. For example, I need to go to the downstairs to the library. I need to go to the downstairs to the library. Yes, can you Sir, please give me? Yeah, Sir, what is the mezzanine means for the basement area? yeah, How we do can we say. how do we say like that means for the basement offices or no like that? Means what exactly what? Offices in the basement area. American people call it basement, that subway only. Okay. Yeah, In British English? it is basement. Basement is British English only, and subway is American English. Okay. Yeah, and Thank you, sir. another word is there, subment. Submit. Subment, ment. Now, especially we have the offices, shops, that's called subment. Submit like Clover Center. Correct. In the basement. Yeah. Thank you, sir. Yes. Can you please give me some sentences with up and down? The people are going up the stairs. The people are going down the stairs. My garage is downside. My flat is upside the building. I am living in uptown area. Correct. I'm living in uptown area. The child was jumping up and down with excitement. Correct. The child was jumping up and down. We have to go up from the shop. Correct. I go to my class upstairs. सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है. I go to my class upstairs. I walked up the hill for fresh air. Correct. I walked up the hill for the fresh air. Next. He is coming up to the mark. He's coming up to the mark. My college is on downtown. My college is in downtown. Is in downtown. Yes. Up and down. My mark sheet is everywhere up and down. My marks have been up and down every year. My marks have been up and down every year. For example, Jack and Jill went up the hill. correct. The market is going up and up every day. The economy is going down day by day. Soldiers are marching up and down. Correct. The soldiers are marching up and down. The Population is children fell down. Correct. The market is going up and down. The market is fluctuating up and down. population is growing up fastly. Repeat once again. Population is growing up fast. Population is growing up Fast. faster. Next. My eyes moved up and down. Okay. The I will road is get- up and down. Gondwa I roads will are get up and down. I Next will get station.
I'll Keep get it down. up. Correct. Next. I'll get down the next station. Next. Keep it up. You are doing great. Correct. Keep it up. You're doing great. He's up to the building. He's up to the building. The parking area is down the stairs. The parking area is down the stairs. We have We to will- work downward. Correct. We walk up to the mountain. We walk up to the mountain. The sky is up the ozone layer. Correct. The sky is up to the ozone layer. Next. The kite fly up. The kites are flying up. Not exactly. Next. He's coming up by the elevator. He's coming up by the elevator. Next. Anyone else Father with fall down to the stairs. correct? Anyone else with up and down? So like walked up the hill, like walked down the hill also. Yeah, And we can say. We can say walked up the hill. I walked down the basement. Okay, we have to say basement. Correct. Means We can it's say not. anything. For example, see, I can say, for example, a building is there. Uh-huh. So up and down, there are 2-3 floors like this. So we can say, for example, this is what bedroom. This is what the kitchen. So we can say, I'm walking down to the kitchen. I'm walking down to the kitchen, or why I walked down to the kitchen. I'm Mhm. walking up to the bedroom. I walked up the bedroom. Don't give up. Don't give up. No, Down what I But वो थोड़ा सा अलग है. Yes, ma'am. what I am asking means walked up the hill. So while walk down the means we have to say hill or basement means like. We can say there. Walk down the hill. मतलब hill से नीचे. That's Correct. I walk down the okay. hill. Means while getting down from Parvati, I should means say I walk down the hill. Correct. I walk down the hill. Okay. Thank Right. you. Next one, please. Now, next one is what? Over and under. बहुत ही easy है. Over and under. Over and under. Now, please pay attention. अब over कहाँ use होता है, under कहाँ use होता है, मैंने कल आपको under बताया था. अब over का आज हम लोग देख लेते हैं. Now, for example, ध्यान दीजिएगा. अभी box है. ये box है मेरे पास में. कहाँ है खाली मुझे बताना है आप लोगों ने. Where is the box? On your hands. On the hands, correct? The box is on the hands. Next. Where is the box right now? Above your hand. Correct. Above the hand. क्यों above? क्योंकि यहाँ पे बीच में गैप है. दिख रहा है आप लोगों को गैप है? मैंने आपको कल बताया था. Above कब बोलेंगे? जब दो चीजों के बीच में गैप रहेगा. When there is a space between the two positions, two elements, we are going to put there above. This is what the box is on the hands. Correct? And what is this? The box is above the hands. The box is on the hand. The box is above the hand. किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ में? No, sir. No. The box is on the hands. The box is above the hand. तो over कहाँ होता है? When something is literally moving round the position. When something is moving round the position, we are going to use there over. मतलब यानी किसी चीज के ऊपर से जाने को हम लोग बोलेंगे over. समझा? अब जैसे कि ये था. Yes, sir. The box is on the hands. The box is above the hand. ये यहीं पर है. मूव नहीं कर रहा है. यहीं पर है. इसको मैं बोलूंगा above. जब कोई चीज मूव करेगी, इसके ऊपर से चली गई, उसके ऊपर से जाने को मैं बोलूंगा over. समझा? मतलब कंप्लीट हो गया वहां से वो. Over यहाँ से ऊपर जा रहा है वो. Over. So now the box is on the hands. The box is above the hand. The box is going over the hands. The box is going over the hands. Next one. For example, this is the mountain. ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ. एक बार ध्यान दीजिए, आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ.
दिस इज द माउंटेन. अब समझो फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है एंड द स्काई इज देयर. ये स्काई है, समझो ये बॉक्स ये स्काई है. तो मैं क्या बोलूंगा? द स्काई इज Above. Above the Mount. mountain. करेक्ट. द स्काई इज अबव द माउंटेन. क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैप है ना इन दोनों के बीच में, इसके लिए. सो द स्काई इज अबव द माउंटेन. सेकेंड थिंग, प्लेन. द प्लेन्स आर फ्लाइंग. अब ये माउंटेन है, द प्लेन इज फ्लाइंग over Over. the Over the Over. mountain. mountain. क्योंकि प्लेन जाके क्या करता है? यहाँ पे आके रुक जाता है ना जय? No, No. sir. नहीं, रुकता नहीं है, वो जाके उड़ के चले जाता है. सो द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन. द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन. द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग. बिल्डिंग के ऊपर से गुजरते बर्ड्स. द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग. यस और नो? Yes, sir. सेम केस. अभी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, ध्यान देना है प्लीज. उसके अबव कुछ नहीं होता है ग्राउंड के अंदर, राइट? अबव खाली स्काई रहेगा उसके डायरेक्टली. अब बाउंस किया बॉल बॉलर ने, अब वो बॉल ऊपर से गई उसकी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? द बॉल वेंट Over. ओवर द हेड. Over the head. द बॉल वेंट ओवर द हेड मतलब सर पे से गई बॉल उसके. द बॉल वेंट ओवर द हेड. समझ में आया आप लोगों को? तो कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है. सेकंड थिंग, मैंने आप लोगों को कल कुछ बताया था. ये बॉक्स है. वेयर इज द हैंड राइट नाउ? Below. Below. बिलो था. No, sir. Under. No, sir. Under. कल बताया था, याद आ रहा है कि मैंने? Under. गैप रहेगा. अंडर. बिलो तो एक लाइन के लिए बोलेंगे हम लोग, एवरेज लाइन रहेगी. अभी फिलहाल में मैंने रूफ बनाया, देखो इसका रूफ बनाया. और रूफ अगर बनेगा तो उसके नीचे अगर कोई चीज अगर रहेगी तो उसको मैं क्या बोलूंगा? द बॉक्स इज अंडर Under. माय Under. मेरे हाथ के नीचे है. द बॉक्स इज अंडर माय हैंड्स. द बॉक्स इज अंडर माय हैंड्स. दूसरी बात, अब कहाँ है बॉक्स? Beneath. करेक्ट. द बॉक्स इज बीनीथ माय हैंड्स. वेयर इज द हैंकी? Underneath. Underneath. अंडरनीथ. याद आ रहा है कल कुछ बताया था मैंने? सो Yes, sir. see there, the box is under my hands. Correct? यहाँ Yes, पे sir. बॉक्स के बीच में गैप है, इसके लिए अंडर लगाएंगे. अब कहाँ है बॉक्स? beneath my hand. Beneath. And where is the hanky? Underneath. underneath my hands. मेरे हाथ के बहुत ही नीचे तय खाने में, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे underneath. तो अब अंडर कहाँ पे यूज होगा? अंडर ये है above, ये है अंडर, ये है above, ये है अंडर. समझा इतना? Yes. दोनों भी Yes, सेम है, sir. अपोजिट है खाली एक में एक का. ओके, सो इट इज सिंपल. अब देखो यहाँ पर उसने दिया है, एग्जाम्पल दिया है, ओवर द बॉक्स अंडर द ब्रिज. ब्रिज के नीचे से दिख रहा है. ओवर द बॉक्स अंडर द ब्रिज. ब्रिज के नीचे से बाहर गया वो. सो ओवर द बॉक्स अंडर द ब्रिज. ऑलराइट, ओवर द बॉक्स अंडर द ब्रिज. नाउ फॉर एग्जाम्पल द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया उसने. द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स. माउंटेन्स के ऊपर से गुजरा प्लेन. सो द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स. नेक्स्ट, आई जम्प्ड ओवर द वॉल इनटू द गार्डन. अब जैसे कि ये वॉल थी, बंदा क्या किया उसने? यहाँ से चढ़ा, ये वॉल थी, वॉल को क्रॉस करके वो डायरेक्ट गार्डन में उतरा. यहाँ पर रोड है और यहाँ पे गार्डन है. समझो ये वाले एरिया में गार्डन है, यहाँ पर रोड है. तो बंदा क्या बोल रहा है? आई जम्प्ड ओवर द वॉल इनटू द गार्डन. I jumped over the wall into the garden. समझा? So jumped over the wall मतलब नहीं पूरा घूमकर गया वॉल से वो. तो जब कोई चीज को आप लोग फुल क्रॉस करते हैं तो वहां पे वो हो जाएगा वो over. Next one, some people say it is unlucky to walk under the ladder. कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि लैडर के नीचे से जाना अनलकी है. ये अपने इंडिया में चलता रहेगा सभी. ऐसा होता वैसा होता, काली नींबू मिर्ची, उल्टी गाड़ी गुड़िया, नाड़ा दौड़ा, इससे होता बोले. कहाँ से लोग लॉजिक यूज करते हैं, क्या मालूम है? ऐसा कुछ होता है क्या? No. मैं तो बिलीव नहीं करता लिटरली. अपने यहाँ पे क्या करते हैं, ऑलरेडी बेचारा काला पीला रहता, माँ उसको करती यहाँ टिक्का यहाँ टिक्का यहाँ टिक्का. बोले मोरे गुड्डू को ना नजर नहीं लगना. अरे वो गुड्डू ऑलरेडी काला पीला दिख रहा है, उसको किसकी नजर लगेगी? कभी आप लोगों ने फॉरेनर के बच्चे लोगों को देखा है क्या? क्यूट एकदम गोरे गोरे, ब्लू आईज, ब्लॉन्ड हेयर, कभी उनको देखा टिक्के बिक्के लगे हुए? No. No, sir. लगाते हैं हम लोग. हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है ये. हमारे यहाँ पे क्या करेंगे? काला धागा, लाल धागा, पीला धागा, बोले बाबा की नजर ना लगे. आहा. अरे अगर ऐसा खुद की सुरक्षा के लिए अगर होता था, लोग क्या करते थे? उसको घर में दरवाजा नहीं लगाते थे, नाड़ा ही बांधते थे. इंडिया इतना खर्चा नहीं करता था आर्मी के ऊपर. क्या करते थे? बोलते जाओ बाबा अपने अपने भाई बीवी बच्चे संभालो, घर पे आके नाड़ा बांध रहे हैं अपन इंडिया को.
नाइस। हुआ है ऐसा? नहीं, सिंपल सी चीज है। जो नाड़ा अपन पहनते हैं, अपन मतलब यानी आप लोग जो पहनते हैं नाड़ा, लोग नाड़ा विड़ा जो पहनते हैं, सिंपल सी बात है, लोगों उनको पूछेंगे क्यों पहनते हैं, बोले सुरक्षा के लिए। एक चीज है, वो नाड़ा निकाल के 10 रुपए की नोट पे बांधो और रास्ते में रख दो, एक आधा आरिफ एक आधा जय उठा के उसको निकल जाएगा वहां से, 10 सेकंड भी नहीं रुकेगी नोट वो। मतलब ये नहीं, वो नोट की सुरक्षा ही नहीं है, नोट की कोई सेफ्टी नहीं है। 10 सेकंड के अंदर एक आधी नोट गायब हो जाएगी। अरे जब वो नाड़ा 200 रुपए के नोट को नहीं बचा सकता, आपको कैसे बचाएगा वो? लोग लॉजिक लगाते ही नहीं, दिमाग लगाते ही नहीं है। This is the same time that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that a time will come when the people will be so educated and will be crackpots. ऐसा टाइम आएगा कि जब लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड रहेंगे और बहुत बड़े ढक्कन रहेंगे। ये वही टाइम है। पढ़ाई बहुत कर ली अपन ने, पर इतना थोड़ा लॉजिक लगाने के ऊपर आता ही नहीं है। बाय द वे, फॉरगेट दैट, मेरा ये टॉपिक नहीं था। अपना टॉपिक है ओवर एंड अंडर। कैन यू प्लीज गिव मी सम सेंटेंसेस विद ओवर, स्पेशली ओवर। अंडर तो हमारा कल भी हुआ था। कैन यू प्लीज गिव मी सम सेंटेंसेस विद ओवर? Sir, fishing. Pardon? Sir, excuse me. Yeah. So fishes means anyone swimming in water. Yeah. So how we say means under or underneath means how it is? We can say underwater. Underneath कब होगा? Underwater. Underneath कब होगा? फॉर एग्जाम्पल जब कोई चीज है उसके बिल्कुल नीचे अगर कोई चीज है, तो जैसे कि पिलो होता है ना, पिलो अपना पिलो होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, रात में फोन यूज करते हैं, पिलो के नीचे रख देते हैं। सो द फोन इज बीनीथ पिलो, उसको अपन बीनीथ बोलेंगे। और जब कोई चीज उसके भी नीचे अगर रहेगी तो हम उसको बोलेंगे अंडरनीथ। नाउ फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज ध्यान दीजिए। द फिश इज अंडर वाटर, पानी के अंदर होती है फिश, बराबर ना? द फिश इज अंडर वाटर एंड द पर्ल्स आर अंडरनीथ। पर्ल्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होते हैं वो, यस नो? Yes. पानी में। सो द पर्ल्स आर अंडर वाटर, सो सॉरी अंडरनीथ, और फिश आर अंडर वाटर। ऐसा है सिंपल। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था 3 चीजों का। ये मेरा हाथ है, हाथ के नीचे है, ये तो रहा अंडर क्योंकि उसमें बीच में गैप रहेगा। अब पानी के अंदर जो मछली होती है वो मछली में और ऊपर के पानी की लेयर में थोड़ा गैप होता है कि नहीं? इसके लिए हम लोग उसको बोलेंगे अंडर वाटर। द फिश आर अंडर वाटर। अब जो ये क्या है? बीनीथ। द बॉक्स इज बीनीथ द हैंड। और अब मैंने यहाँ पर लगाया हैंकी। ये जो हैंकी है ये कहाँ है? अंडरनीथ। एक तो होता है बीनीथ नीचे, उसके भी नीचे मतलब है नहीं अंडरनीथ। सो द हैंकी इज अंडरनीथ माय हैंड। Okay? Okay, sir. Thank you. Yeah, can you please people make sentences with over? Make sentences with over. Over मतलब यानी ऊपर से। This topic is over my head. The topic is going over my head. Next. Clear. The bridge is over the river. Correct. The teacher taught me the subject and it goes over my head. Correct. Over. Yes. Bikes went over the speed breaker. Correct. The bike went over the speed breaker. उड़ा के लेके गया। The water is overflow. The building. The water is overflowing. ऊपर से गुजर रहा है। I climbed over the wall. Correct. I climbed over the wall. The car is moving over the road. Correct. My friends are walking under the bridge. Correct. Under the bridge. Yes. River going under the bridge. Correct. My car is parked under the bridge. The garage is under my building. A man is standing under my building. We play volleyball. Rohit said, Pay attention. We play volleyball Yes, sir. over the net. Yes or no? Yeah. Net के ऊपर से जाता है ना बॉल. We play volleyball over the net. Yes. If it is just went to the touch touched with the net, so how we express it? Rohit said, If if the car over the truck. Wait. Suppose for example, net is there, correct? Yes. This net is there and people play over the net. यहाँ पर से खेलते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर मारते हैं, बराबर ना? आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर if the ball is touching over here, right? हाँ, नेट को जस्ट टच करके पास हो गया है।
ओके, दैट साइड, सेकंड साइड पास हुआ, राइट? हाँ पार करके गया ना उसको, हाँ, दिस इज कॉल्ड थ्रू. सॉरी, थ्रू. थ्रू, करेक्ट. नॉट थ्रू मीन्स ओवर, वहीं से ऊपर से टच करके आगे चला गया आगे केस में, जैसे भी over बैडमिंटन में बोलेंगे. होता है. हाँ, उसको भी ओवर ही बोलेंगे. Very ओवर ही बोलेंगे okay. उसको. फॉर एग्जाम्पल सी, सिंपल, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दिया ना, क्या दिया था उसने? ओवर द वॉल. ओवर द वॉल मतलब है नहीं, अभी बंदा जो है, फॉर एग्जाम्पल ये वॉल है, तो यहाँ से चढ़ा, यहाँ पर बैठा, फिर यहाँ से नीचे से उतर गया, ऐसा है वो. हाँ. ओवर द वॉल, उसको भी ओवर ही बोलेंगे. यस, सेम. Thank you. Yes. Can you please give me some more sentences? Over, under, over, under. Jay. Rohit Shetty flew the car over the truck. Correct. And, He hit shot over the person. Correct. I shot the shot over the net. Correct. Over the net. He is coming over the wall. Correct. He's coming over the wall. Yes. He jumped over the fence. Correct. He jumped over the fence. Next. No any aircraft over the Makkah Medina. Yeah. Correct. Over No the aircraft can pass over Mecca. Not he exactly stand Mecca, under the the Kaaba. tree. Correct. The birds are flying over the tree. The kites are flying over the buildings. Hmm. Anything The is with corals over? are underneath. Repeat. Over. The corals are underneath Correct. the sea. Correct. The clouds flying over the mountain. The clouds are over the mountain. The clouds are roaming over the mountain. Yes. There is no bridge over the Amazon River. Correct. He lives over the road. Correct. The plane is moving over my building. The plane is Moving over my building. over my building. Flying. Over the Flying cloud. over my building. Over the cloud. Hmm. Over the cloud. Okay. Next one is what? Through. Through. When do we use through? When we are literally cutting the position and literally tearing the position. थ्रू मतलब यानी एक चीज में से दूसरी जगह में. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से घुसा, यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ से एंटर किया, यहाँ से बाहर निकल गया. दैट्स व्हाट थ्रू. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर है, कोई चीज यहाँ से गई और फिर यहाँ से निकल गई. फॉर एग्जाम्पल विंडो है, विंडो. अब जैसे विंडो के अंदर से मैंने बॉल फेंका और बाहर निकल गया हो, तो मैं क्या बोलूंगा? थ्रू द विंडो. फॉर एग्जाम्पल आई केम इन टू द क्लास थ्रू द डोर. सो डोर के अंदर से. अब ये जो डोर यहाँ पे लगा हुआ है सपोज, ओके, तो यहाँ पे कॉरिडोर है और ये क्लास है. आई केम इन टू द क्लास थ्रू द डोर. डोर में से अंदर गया मैं और यहाँ से बाहर निकल गया. तो जब कोई चीज आर पार निकल जाती है ना, तो उसको अपन बोलेंगे थ्रू. ओके, आर पार होना चाहिए, वो एक जगह से निकला दूसरी जगह से निकलना चाहिए वहां से, तो उसको हम लोग बोलेंगे थ्रू. फॉर एग्जाम्पल अ बर्ड फ्लू इन टू द रूम थ्रू अ विंडो. विंडो में से अंदर आया बर्ड. अ बर्ड फ्लू इन टू द रूम थ्रू अ विंडो. विंडो में से अंदर आया, दैट्स व्हाट थ्रू अ विंडो. नेक्स्ट वन, द ओल्ड रोड गोज थ्रू द विलेज. विलेज में से, देखो ये जो रोड था, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये विलेज है, ये विलेज में से अंदर घुसा वो रोड और बाहर निकल गया. सो द रोड गोज थ्रू द विलेज. विलेज में से अंदर घुसता है और वो विलेज से बाहर निकल जाता है, तो रोड जो है वो विलेज के बीचों बीच का है, ऐसे समझो. सो द रोड वेंट थ्रू द विलेज. विलेज में से बाहर गया वो रोड. ओके, सो द रोड वेंट थ्रू द विलेज. नेक्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये कोई चीज है, ग्लास है, ग्लास के अंदर से हम लोग देखते हैं ना आर पार, तो हम लोग बोल सकते हैं आई कैन सी थ्रू द ग्लास. आई कैन सी थ्रू द ग्लास. आई कैन सी थ्रू माई फिंगर्स. ये मेरे फिंगर के बीच में से मैं देख सकता हूँ आर पार. ओके, सो यहाँ से डाय के यहाँ से निकल जाएगी, दैट्स व्हाट थ्रू. नेक्स्ट वन, कैन यू प्लीज गिव मी सम सेंटेंस विद थ्रू. थ्रू के साथ में सेंटेंस दो पहले.
Sir, what is the difference between penetrate and through? पेनिट्रेट एंड थ्रू, पेनिट्रेट के अंदर होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी पेनिट्रेट के अंदर चीज के लिए सेकंड जो ये रहेगा, फॉर एग्जांपल अभी कोई होल है, ओके अभी जैसे कि मैंने कोई बॉक्स रहेगा, बॉक्स के अंदर मैंने क्या किया, पेन लिया, मैंने पेन लिया, सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन द पेन एंड आई हैव डायरेक्टली टिच्ड इनटू द बॉक्स, करेक्ट? सो देयर इज अ होल इनटू द बॉक्स, but the second side of the box is completely flat, there is no hole, so this is called penetrated. Okay. And through is what, literally if I'm just Okay. hammering over here and another hole is outside the hole, Passing so, through. correct, it is literally passing through the box. Yeah, so that in penetration there is no the Thank you. second hole is there, only the front hole will be there, front closing door will not be there. The sun rays are passing through the window to in my Correct. room. Correct, we can say I The can bullet see goes the She is through the going through my body. building. transparent mirror. one by one. Yes, The I can bullet see through goes the through transparent mirror. correct, through the transparent glass layer, the bullet goes through the body. correct, the bullet went through the body, when he shot the man the bullet went through the body में से यहाँ लगी और पीछे से निकल गई वो, तो बोलेंगे हम लोग उसको went through the body. Next, Many the four through the ball or your voice is lagging, Arif. I threw the book out of the window. The mouse through the Correct, window. I threw the book out of the window. Sir, we have to say out or out because through means through the window, no? Yeah, we can say that was also. For example, आपने जो sentence बनाया गलत नहीं, वो ये वाला sentence है, which you have just made. The sentence is this one, out of. Where is that? Out of. Okay. This one. Out. Yeah. Now you can say the book went through the window. Through the window. The book went out of the window or the book went through the window. Window से direct बाहर निकली वो. Sentence correct है, दोनों भी correct है. Yes, continue please. This ray can pass through the mirror. Correct. For example, I can't see through my hands. I can't see through my hands. मैं मेरे हाथ के अंदर से नहीं देख सकता हूँ. I can't see through my hands. Yes. Through. It went through the door. Correct. It went through the door. Door के अंदर से गया. Yes. Mouse run through the door. Correct. Mouse runs through the door, or mouse ran through the door. Through the cage. Correct. Through the cage. यहाँ से भागा, वहाँ से निकल गया. The air comes through the window. Correct. The air is flowing through the window. I saw her drive through a red light. Correct. Yes, through. we will go through the village. Correct. When people speak nonsense, I listen through the ears. यहाँ से सुनता हूँ, यहाँ से छोड़ देता हूँ. So this is, we listen through the ears. We always. Yes. He can't see through the eyes because he's blind. Correct. I am going to Mumbai through the Lonavala. Through Lonavala. Very good. Now pay attention. बहुत ही अच्छा sentence है यहाँ पर. For example, ये मुंबई है. Okay. Just imagine. This is what Mumbai. This is Pune. दोनों के बीच में क्या है? लोनावला है. Lonavala. Correct? अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको मुंबई जाना है तो लोनावला को क्रॉस करना ही पड़ेगा. Literally. So we can say I went to Mumbai through Lonavala. तो लोनावला से होकर गुजरा मैं, मतलब मैंने लोनावला में एंटर किया और लोनावला में डायरेक्ट बाहर निकल गया यहाँ से. So this is what called through Lonavala. Continue, please. Is it applicable to only means place or any road, or we can say? Place, position, for all the positions. For all the positions, it is applicable. For example, now I can say अभी जैसे कोई रास्ता है ऐसा, मैं कैसे बोलूँ भी आपको? No, like I means to go for Alankar medical, I have to pass through your class. No, like. Correct. Exactly right. For example, same case is there. Tunnel होता है ना, tunnel.
टनल इज देयर, राइट गाइस? तो टनल के अंदर से जाने को, बाहर निकलने को यहाँ से दोनों जगह से रास्ता है, राइट? True. Huh. I can say Yes. that I go through the tunnel. The train is going through the tunnel. Mm-hmm. The train is going through the tunnel. तो अंदर यहाँ से एंटर करती है और यहाँ से डायरेक्ट बाहर निकल जाती है. The train is going through the tunnel. We can say this. Mm. If you want to do PhD, you have to pass through the CET exam. Correct. You have to pass through this CET exam. Correct. Mm. उसमें से गुजर के जाना पड़ेगा. We have to go through Pulsirat on the day of Yes. judgment. We Yes. we enjoyed the journey through the tunnel. We enjoy the journey through the tunnel. Yes. He is coming here to the hospital. Mm. Through the hospital. हॉस्पिटल में से आ रहा है वो, मतलब यानी वो पहले घर पर था, करेक्ट, फिर वो हॉस्पिटल गया और फिर हॉस्पिटल से आया ऑफिस. तो हम लोग बोल सकते हैं ही केम हियर थ्रू द हॉस्पिटल. Sorry, यस. sir. फॉर एग्जांपल द मैन वाज देयर एट होम, देन ही वेंट टू द हॉस्पिटल, देन एट लास्ट ही रीच्ड टू द ऑफिस. तो वी कैन से द मैन केम थ्रू द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल से होकर आया है, ऐसा. Mm-hmm. We have गो थ्रू, on books. Books. गो थ्रू द बुक्स. हम लोग बोलते हैं ना, गो थ्रू द चैप्टर्स. चैप्टर्स में से जाओ जरा, थोड़ा सा गो थ्रू करो जरा, बोलते हैं ना हम लोग. फॉर एग्जांपल गो थ्रू माय प्रोफाइल वंस, गो थ्रू द प्रेजेंटेशन. एक बार जरा जाकर आओ जरा प्रेजेंटेशन में से, मतलब एंट्री मारो, बाहर निकलो, मतलब पूरा पढ़कर उसको बाहर निकलो. Go through the law. गो थ्रू द लॉ. ओके, The radio It's a waves बहुत- come through the mobile phone. करेक्ट, बोल सकते हैं, बोल सकते You हैं. can only speak English by practice, through practice. क्या बात है, क्या बच्चा है मेरा. वेरी नाइस, गुड बॉय. प्रैक्टिस करो रे सबके सब घर पे, याद से समझ में आ रहा है. Please practice at home, and if you don't practice at home, then may God help you. Is that clear to all of you? Yes. Yes. Getting it? और आज मेरा 12वां बर्थडे है. Please pay the fee. 12 August is there. Getting it? Please pay the fee, otherwise you will be out of the class. आपका क्लास रहेगा इम्प्रेस गार्डन में. Getting it? We'll see you tomorrow on time. Cheerio, and please next batch please Cheerio. join now. Okay, sir. Cheerio.